Hey you guys, hello, कैसे हो आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू अन अरोरा क्लासेस विद येट अनदर एपिसोड ऑफ part 5 of previous year question series. I'm just enjoying this series. Like, let me tell you, I'm just enjoying this series, and I hope you guys are too enjoying this series. And firstly, just sorry for the inconvenience that मैं last day video upload नहीं कर पाई. I don't know what was that. Like, it was a something technical error, or like I don't know, there is some technical issues was there, मुझसे सॉल्व नहीं हुआ. लाइक आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट. आई एम जस्ट आई वॉज ट्राइंग टू अपलोड द वीडियो रेगुलरली. लाइक आई हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स, like already, like post the my current status in like Telegram group, but I couldn't make it happen. So sorry for that. I don't know what was that, but still I am re-recording this video. So hey you, just I just want to tell if you guys are new to my channel, which is Aurora Classes for Net JRF, so please do subscribe to my channel, which is providing good content, good explanation with easy notes. So you can please for Net JRF, so you can please do subscribe to my channel. Also, please like button, and please press the like button, and also press the bell icon along with it, so you will notified whenever I'll upload a video. And also, if you guys are interested in PDFs and like discussion wala part, so you have two ways. Firstly, you can comment in the comment box, and also if you guys are smooth like conversation with me, or like discussion, if you guys are really interested to discuss something study related, so you can also join, or for PDFs especially, you can also join our Telegram channel. You just need to go on Telegram and just search Aurora Classes for Net JRF and just join the group. And if you guys are also like interested in PhD, so there is another group for PhD called PhD Mania. So we are providing PhD related content in that group. Okay, so before like any further ado, just get into this video. Okay, so we are doing part 5. Okay, part 5 of previous year question series. और आज का थोड़ा अच्छा होने वाला है, like हमेशा ही अच्छा होता है. और अगर आपने पार्ट 4, 3, 2, 1 नहीं देखे हैं, तो यहीं कहीं आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा. आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो जस्ट गो एंड चेक देम आउट. They were like very helpful for your for your exam. Okay, so let's jump into this video before any further ado. And please do like, share and subscribe to my channel. Okay, so our very first question is related to the income tax series. So those who are like watching this video very first time, or those who don't know about that, I have already completed the whole income tax unit in my previous videos. So you can check the video on your like in screen. There is a I button is showing this link on the I button, or I will provide the link in the description below, so in the description box, so you can go and just check it out. I am assuring you it is just very helpful for your Net JRF exam, especially those who are like very worried about income tax unit. So let me tell you, it is not that much like terrible. I was doing like very easy way में मैंने बहुत अच्छे से करवाया था. So you can just once check it out, you will surely like it. So okay, so for this आज का first question is related to the income tax unit. Surcharge of 10% is payable by an individual where the total income exceed. तो surcharge क्या होता है? Let me tell you the first what is surcharge. तो surcharge is charge on charge. ठीक है, हम जो total income, that means हमारी जो net taxable income आती है before like after deductions और so many things, जो हमारे पास net total income आती है, taxable आती है, उस पे surcharge pay होता है if आपकी net taxable income एक certain amount से इससे ज़्यादा हो रही है, इससे ज़्यादा हो रही है, या कोई भी एक जो रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से हमारी मिनिस्ट्री और हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिक्स किया होता है. अगर if your income is just exceeding that limit, तो you have to pay something extra to the government. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सरचार्ज. ओके, सो सरचार्ज क्या, सरचार्ज की रेट्स में भी डिफर लाइक फ्रॉम लाइक डिफर कर सकती हैं टू लाइक इनकम बेसिस. ठीक है, अगर इतनी इनकम से इतने यू आर रैगिंग फ्रॉम दैट इनकम टू दैट इनकम स्लैब, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज. इफ यू आर रैगिंग फ्रॉम दैट मच इनकम टू दैट मच टू लाइक 20% हो चुका है, देयर इज लाइक
different surcharges over there. So our question is related to the 10% surcharge और individual के केस में तो क्या हो सकता है, हम पहले वो करते हैं सरचार्ज कैसे डिफाइन करते हैं. तो इन द नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू शो यू कि 10% किस पे होता है, 15% किस पे होता है, 25% कहाँ होगा, एंड देन लास्ट वी हैव द 37%. एंड दिस इज ओनली फॉर द इंडिविजुअल बेसिस, लाइक इंडिविजुअल पर्सन्स. ओके, सो वी हैव 10% surcharge ranging from 50 lakhs on, ranging from 50 lakhs to 1 crore rupees. If our income is exceeding, net taxable income is exceeding from 50 lakhs but up to the 1 crore rupees, then you have to pay extra 10%, that is called surcharge. Okay, if your income is exceeding from 1 crore, that means your income is ranging between something in between 1 crore to 2 crore, that means you have to pay 15%. From 2 crore to 5 crore you have to pay 25%, and above 5 crore you have to pay the 37% of surcharge on your इनकम विच इज एक्सीडिंग फ्रॉम रुपीज 5 करोड़ रुपीज. आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा. तो इससे हमें हमारा आंसर भी मिल चुका है, वी कैन गेट आवर आंसर. तो हो चुका है फाइनल कि 10% कहाँ लगेगा, एक्सीडिंग फ्रॉम 50 लाख टू 1 करोड़ रुपीज पे. सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन इज रिलेटेड 10% surcharge. So we have our answer in our eyes. So 50 lakh rupees is the answer. That means option number 3 is our answer. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा. नहीं आया हो या कुछ और दिक्कत आ रही हो या कुछ और दिमाग में कीड़े होते हैं ना बहुत टाइप के ये पूछ सकते थे, ऐसा हो सकता था, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. You can pause this video or just go through with all these slips, or you can write it down in your notebook. I always said कि notes बनाओ, notes is preferable and preferenceable. Like ठीक है आप बना रहे हो, it will take your time, or I can say it will take your long, like अच्छा टाइम लेते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करो. लाइक आई एम द वन हु आर लाइक वेरी फॉन्ड ऑफ माई नोट्स. आई कैन नॉट रीड विथ समवन एल्स नोट्स. ठीक है, तो इफ़ यू आर लाइक दूज काइंड ऑफ पर्सन, तो यू शुड, और जो जिनको हैबिट नहीं है उनको भी बनाना चाहिए, स्पेशली क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं कि हम 17 जगह से चीज़ें कवर कर रहे हैं या हम कहीं से भी कवर कर रहे हैं, पर जब तक वी आर नॉट कन्वर्टिंग दैट पीडीएफ्स और दैट लैंग्वेज इनटू आवर लैंग्वेज. मैं तो हमेशा अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ, इसीलिए मेरा जो ग्रुप है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि मैं अपनी लैंग्वेज में चीज़ें ईजी करके ही आप लोगों को समझाती हूँ. दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम हियर एंड वाई आई एम एक्सप्लेनिंग द थिंग्स. ठीक है, तो बेटर है कि आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग नोट्स रखो. ठीक है, इट्स गुड टू हैव नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज. ओके, चलो moving back to the next question. We have next question related to our banking unit. Specific topic is related to monetary policy and fiscal policy. So we all maybe have known about monetary policy or fiscal policy. Okay, so question पढ़ लेते हैं एक बार पहले, then we'll move to the explanation part. So in the statement first we have to decide which statement is right, or both are right or both are wrong. So let's just read the first statement. In the first statement it is saying that monetary policy causes deliberate change in government revenue and expenditure. what you like expected क्या है आपसे करना. एक तो बच्चे होते हैं जैसे पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर वो समझेंगे, लाइक समझना इज़ अ वेरी गुड थिंग. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन समझो मत, समझना इज़ अ वेरी गुड थिंग. ठीक है, बट लाइक आपको पढ़ना है, अब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे. और एक होती है स्मार्ट स्टडी विच बेस्ड ऑन वर्ड्स. ठीक है, एंड आई ऑलवेज फॉलो दैट स्ट्रेटेजी. ठीक है, वर्ड्स पकड़ो, क्वेश्चन मत पकड़ो. क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है सिर्फ वो समझो, और वो वर्ड्स क्या बोल रहा है. देखो हर टॉपिक से रिलेटेड एक वर्ड होता है, हर कॉन्सेप्ट का अपना खुद का, जैसे हमारा खुद का सरनेम होता है ना, जस्ट लाइक विद दैट सबका एक प्रेफरेबल क्या होता है वर्ड होता है. ठीक है, तो आपको उसको फॉलो करना होता है कि वो क्या बोलना चाहता है. जैसे आप I'll explain you later that. ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ लिया. क्या पढ़ लिया? मॉनेटरी पॉलिसी causes a deliberate change in government revenue expenditure with a view of influencing the price level and the quantum of the national output. Sorry. ठीक है, statement 2 is saying that fiscal policy regulate the money supply and the cost and the availability of credit. ठीक है, अब जो लोग जो लोग अब थोड़ा भी समझते हैं, जैसे आज मुझे आई एम टेकिंग माई ओन एग्जाम्पल, जैसे मुझे
मॉनेटरी और फिजिकल के बारे में आई डोंट हैव दैट टन्स ऑफ नॉलेज, आई जस्ट नो ओनली 2 और 3 वर्ड्स कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है और क्या करती है, ठीक है। तो अब मुझे वर्ड्स क्या पता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो क्रेडिट सप्लाई का काम करती है, दैट मीन्स वो मनी से रिलेटेड जो भी टर्म्स होती है उसमें काम करती है। और फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स हैंडल करती है, ठीक है। वट आई हैव नोन इज दिस, ओनली दिस थिंग। तो अब इस दिस थिंग के बेसिस पे भी वी कैन डिसाइड दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट बिकॉज दे आर सेइंग वाइस वर्सा, यानी कि अपोजिट कह रहे हैं, कुछ ऐसा सिमिलर बोल नहीं रहे। मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल के बारे में बता रही है एंड फिजिकल पॉलिसी इज सेइंग अनदर थिंग, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी द स्टेटमेंट 2 इज सेइंग अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी। तो we can say the both statements are incorrect, that means our option is option number 2, so we can conclude। अब होती क्या है I'll explain you। चलो ठीक है, आई एम श्योर आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट या दैट इज़ द मेन पार्ट की फीचर ऑफ आवर चैनल की पहले अच्छे से समझ लो। कुछ भी अगर चीज़ टाइम ले रही है तो जस्ट dive into that, like if you are curious to know about something very well, so just dive into it, this is the best part and I have reached this conclusion, just we need to dive into this, like कुछ समझना है तो उसे पहले समझ के रखो, ऐसा नहीं कि पढ़ने के पर्पस से करना है, समझने के पर्पस से करोगे तो यू विल नो ऑल द थिंग्स, ओके। चलो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी समझ लेते हैं। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, I have to record this video, so sorry for the background noise if any voice is coming, if any voice is coming, okay। So chalo monetary policy and the fiscal policy, I am sure my screen is visible to all of you। monetary policy and the fiscal policy, okay। so monetary policies refers to the action central bank कौन, RBI। जब हम 11th-12th में पढ़ते थे ना, like most of the you guys have known कि I am a हिंदी मीडियम स्टूडेंट, सो कि तो जब स्टार्टिंग में पढ़ना, आई एम सॉरी आई एम शेयरिंग दिस थिंग इन बिटवीन, लाइक समझाते हुए, तो व्हेन वी वर स्टडिंग इन एट 11th क्लास, तो लाइक बैंकों का बाप होता है RBI, तो जस्ट बैंकों का बैंक, बैंकों का बाप, ओके। सो द सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड RBI। आई एम श्योर थोड़ा रिकनेक्ट किया होगा, रिलेटेबल होगा, आई डोंट नो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, refers to the action, monetary policies refers to the action central banks take to pursue objectives such as price stability and maximum employment। basically मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या होता है मैं आपको एक ही उसमें बता देती हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय द RBI, दिस इज द फर्स्ट थिंग एंड द मेजर थिंग। कई बार इस बेसिक क्वेश्चन से भी पूछ लेते हैं कि कौन रेगुलेट करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी or all the monetary terms which is related to our economy is only and single-handedly regulated by our own bank, our central bank RBI, ठीक है। मॉनेटरी से पता चल रहा है कि मनी से रिलेटेड है, दैट मीन्स मनी से क्या, मनी कितना आना है मार्केट में, कितना जाना है, मनी का कितना सर्कुलेशन है, कितना अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसे बाहर निकालना है, मनी कम पड़ रहा है तो ज़्यादा देना है, कमी हो अगर ज़्यादा है तो उसे बाहर निकालना है। इनको निकालने और डालने के लिए, दैट मीन्स मनी को सर्कुलेट कराने और सर्कुलेटेड मनी को वापस वाइप आउट करने के लिए देयर आर टूल्स विद द RBIs, दैट द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट tool is interest rate। if there is like lack of money in the market, then RBI do one thing कि वो interest rate कम कर देंगे, they will reduce the increase interest rate so that public will like more interested in like loan amount कि oh now the interest rate are like लो तो वी कैन लाइक लोन इट आउट, ओके। एंड अगर ज़्यादा है और वहाँ से पैसा खींचना है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देंगे, जिससे पब्लिक अपने आप को संभाल लेगी कि नाउ लाइक this is not affordable for all of us, like interest rate is too high। so this is the basic tool, like interest rate is the basic tool। there are many more like tools, if you guys are interested in that so please let me know कि आपको और भी जानना है, ठीक है। तो this is all about monetary policy, पैसा कैसे आना है, कैसा जाना है, कैसे रेगुलेट होता है, कैसे सर्कुलेट होता है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, all regulated by the monetary policy or regulated by the RBI। now coming back to the fiscal policy, fiscal policy is related to the or refers to the government revenue collections and spending decisions, ठीक है, ये काट दो जो भी है whatever। fiscal policy is related to the government, that means GOI। fiscal मतलब कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, that means आप जो टैक्स दे रहे हो that will also count in the
फिजिकल पॉलिसी, और भी जो गवर्नमेंट को डोनेशन जाता है, गवर्नमेंट जो लाइक इंडस्ट्रीज से चार्ज करती है, कोई भी और तरीके की जो गवर्नमेंट की इनकम हो रही है, दैट विल कम इन द फिजिकल पॉलिसी ओनली. दैट मीन्स ऑल गवर्नमेंट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, दैट इज अगर इफ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन द रोड्स और दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, स्कॉलरशिप and many more things, like many more things if government are doing for the public welfare, for the social welfare and etc xyz, so they will fall into the किसमें fiscal policy. okay, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो दिस इज द रीज़न कि ये वाला स्टेटमेंट क्यों गलत था, बिकॉज फिजिकल पॉलिसी में क्या हो रहा था, सप्लाई एंड कॉस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट नहीं आता है, दैट विल कम इनटू द किसमें उसमें मॉनेटरी पॉलिसी में, और ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर विल कम इन द फिजिकल पॉलिसी. ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आंसर भी समझ में आ गया होगा, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गई होगी. you are good student, like I know my student, they are like very intelligent. ठीक है, this is the differentiation chart between fiscal policy and the monetary policy. You can pause it on this stage like for 2 to 3 minutes and just give it a look और देखो क्या है. अगर फिर नहीं समझ में आता है तो please do let me know in comment box, or you can follow me on telegram, wherever you want to do. okay, just but do. okay, you'll just let me know in the comment section. Do like my video if you guys are enjoying. और ठीक है, सो अगेन आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द इनकम टैक्स यूनिट. तो अभी भी मैं बोल रही हूँ कि अगर किसी ने फॉलो नहीं किया है इनकम टैक्स का, तो गाइज जस्ट डू चेक दैट आउट. ओके, लिंक इज आई बटन पे शो हो रहा होगा, और आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो आर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द इनकम टैक्स deductions part, and let me tell you this deductions are very important for us. like for exam point of view, कुछ ऐसे होते हैं जो मैं खुद बोलती हूँ इनकम टैक्स में, कि कुछ ऐसे वो होते हैं ना कि जैसे फैक होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कहीं हम किसी जगह को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे होते हैं. सो कुछ टॉपिक्स, देर आर सम टॉपिक्स विच आर लाइक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर NTA नेट JRF एग्जाम. दीज आर द टॉपिक विच इज श्योरली कि यहाँ से तो 99.99% हम लोग लिख के कितनी बार तो बोल देते हैं अरे यहाँ से आएगा. दीज आर सम टॉपिक्स कि मैं खुद बताती हूँ कि अच्छा ये वाले टॉपिक्स हैं, ये तो फिक्स हैं, श्योर है इनकम टैक्स में से ये तो आएंगे ही सही. जब बच्चे बोलते हैं ना मैडम इनकम टैक्स की यूनिट इज सो लेंथी, हाउ कैन वी डू दैट, लाइक कुछ टॉपिक करो. आई एम नॉट सेइंग कि पूरी यूनिट घोल के पी लो, वो तो मैंने भी नहीं पी रखी और कोई नहीं पी सकता. देयर आर अमेंडमेंट्स, देयर आर न्यू थिंग्स एंड चेंजिंग पीरियड बाय पीरियड. ओके, so there are some fixed topic, so you can go with that. okay, तो चलो कर लेते हैं. ATG का क्वेश्चन है, डिडक्शन से क्वेश्चन रिलेटेड है. ATG मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड फॉर एनी कैश डोनेशन. जस्ट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. दे आर आस्किंग फॉर द कैश डोनेशन डिडक्शन. देयर आर, you can pay the donation. ATG is related to the donation part. if you are paying the donation or like donating something or charity trust, there are the things in this like in this deduction. so if you are like doing something with check, or there are limits over there. ठीक है, तो अगर आप कैश से कर रहे हो तो कैश की कुछ लिमिट है कि आप एक सर्टेन अमाउंट तक कैश से डोनेशन दे सकते हो. अगर आप उसके बाद कैश से डोनेशन दे रहे हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल नॉट अलाउ दैट कि अच्छा आपने तो कैसे इतना ज़्यादा दे दिया, हम कैसे मान लें आपने दिया है कि किसी और को दे दिया. देयर इज़ नो प्रूफ. अगर आप एक सर्टन लिमिट तक देते हो देन ओनली द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल कंसिडर दैट डिडक्शन, अदरवाइज दे विल डिनाई इट. ओके, so the question is asking for the same, that what is the deduction amount, maximum deduction amount. okay, so maximum deduction amount for cash deduction is 2000 rupees. like if you are paying 2000 rupees cash donation, that only then only it will eligible for the deduction. if you are paying for more than 2000, it is not deductible. sorry, income tax department saying sorry madam, we can't accept your donation. okay, so ATG is related to the donation part, and the cash donation maximum limit is 2000 rupee. you cannot pay your donation exceeding 2000 rupees. okay, in cash only. if you are like interested in deduction, like if you want to like डिडक्शन, तो आपको सिर्फ 2000 रुपये. बाकी आप यू कैन पे बाय चेक और बाय DD और by net or online transaction in their account. there are many ways. okay, so this is the question. I hope you guys enjoy this question, and this is the income tax deduction section. just look at this section for a while, and if you guys are brief, like if you guys want brief like knowledge about these section, so you can. I am also saying this, and why I'm insisting this thing so much, because
जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, व्हेन आई स्टार्टेड, तो माय फर्स्ट यूनिट वाज इनकम टैक्स एंड ट्रस्ट मी, इट वाज लाइक वेरी गुड, इट वॉज लाइक लिटरली वेरी गुड. मैं बहुत प्राउड से बोल सकती थी उस चीज़ को, और आज भी आई एम सेइंग विद अ वेरी प्राउड कि इनकम टैक्स इतना ईजी, मेरे स्टूडेंट्स के रिव्यूज थे कि इनकम टैक्स इतना ईजी लगता नहीं था जितना ईजी हो चुका है. तो दिस इज लाइक, I'm not saying that a piece of cake. It is like there are things which you need to remember without any like loading your mind as ठीक है ये आधी करनी है छोड़ो. But there are like funny parts and you can like with the trips or tricks or there are things. Okay. So this is the income tax section 80C, 80D, 24B, 87A. There are 80 standard deduction, 80E. This is not the full chart. I am showing this chart as just the reference basis. Okay. So this is not the full chart. And of course this chart is related to this, of course वरना copyright issue होगा. So section 80 TTB and 80 CCD. So just enjoy and link आपको show हो रहा होगा आई बटन पे, you can just check that out. Okay, so let's moving to the next question. Our next question is related to the act, and let me tell you one thing. There are some things which is out of blue, like which is out of syllabus, which is out of content, but still हम भाग नहीं सकते हैं. वी कैन नॉट रन आउट और चिकन वेयर रन अवे और लाइक नहीं करना है. वी हैव टू डू दिस. सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना किसी चीज़ के भी आ जाती हैं. तो दिस क्वेश्चन इज सिमिलरली लाइक दैट. तो इसमें कुछ एक्ट्स दिए हुए हैं, लाइक वी आर ऑलरेडी लाइक स्टडिंग नंबर ऑफ एक्ट. देयर आर कंपनीज एक्ट, GST एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड देन वी हैव लाइक RTI, देन वी हैव द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, देन वी हैव द कंपनी, देन वी हैव लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. देयर आर नंबर्स ऑफ एज लाइक एक्ट्स, और दिन पे दिन तो सिलेबस बढ़ता ही जा रहा है. वो तो एक अपने आप में ही मज़ा है कि हर बार कुछ नया धमाकेदार मिलता है हमें. तो देयर आर सम एक्ट्स, सॉरी एक्सक्यूज मी, देयर आर सम एक्ट्स. ठीक है, तो अब क्या है, आपको इन एक्ट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है. जब भी कुछ ऐसा आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन जाके, तो अपने दिमाग पे लोड मत लो कि अब हमें उसमें पूरा क्वेश्चन में घुस के उसे पढ़ना पड़ेगा ना. यू डोंट नीड टू डू दैट. लाइक मैं हमेशा बोलती हूँ, जो टॉपिक आपको 4 दिन ले रहे हो उन टॉपिक को छोड़ दो. पता है एक क्वेश्चन आना है, गोली मारो उस टॉपिक को. क्यों करना है 4 दिन किसी और टॉपिक पे दो, 10 क्वेश्चन वहाँ से निकालो, एक पूरी यूनिट कंप्लीट हो रही है. बाबा क्या करना चाहते हो. ठीक है, सो दिस इज द थिंग, दिस इज कॉल्ड द स्मार्ट स्ट्रेटेजी. ओके, so you need to like arrange this question, arrange these acts in the chronological sequence from first to the last. So without like discussing it more, let me tell you the right sequence. So first, in the first chronological order, we have the minimum wages act, that we have mines act, then we have apprentice act, then we have the payment of gratuity act, and then we have the last child labor act. Okay, so these are the sequence, और आंसर उसी के अकॉर्डिंग जाएगा. फर्स्ट वी हैव मिनिमम वेजेस एट, दैट मीन्स द B, एंड देन वी हैव द माइंस एट, दैट मीन्स A. दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. ओके, आई होप यहाँ तक सब कुछ सबको समझ में आ गया होगा. एंड last question is related to, again, so I can say that like today's video, today's part 5 is mostly related to the income tax unit. So I'm again insisting you just go and check that series, or check that pura playlist. I have already made that playlist, so just go and check that. ITR के लिए भी मैंने एक बहुत अच्छा अलग से सेशन कंप्लीट करवाया था मेरे स्टूडेंट्स को. सो सुगम इज ऑल्सो नॉन एज, तो वी हैव ITR. ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म. तो वी हैव फॉर्म रैगिंग फ्रॉम 1 to 7 फॉर ITR फिलिंग. ठीक है, ITR फिल करने के लिए हमें वी हैव लाइक फॉर्म नंबर 1 2 3 4 5 6 7. सो दीज ऑल फॉर्म्स आर रिलेटेड टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इनकम. ठीक है, अगर आपकी इनकम सैलरी से आ रही है तो यू नीड टू फिल फॉर्म नंबर like for example A. If your income is coming from house property, then you need to like fill the form number B. So there are the things. Okay, there are the things, you know, if your income is related to the different kind of, there are limits, and there are limits also कि income इतनी होनी चाहिए. तो इसमें तो there are 2 forms. I am telling you, there are only 2 forms जिनको हम किसी और नाम से भी जानते हैं. लाइक वी हैव ऑलरेडी अ 2 नेम ऑफ दैट फॉर्म. तो जस्ट लेट मी क्लियर इट. So this is the question, and ITR is one of the topic of income tax that is like frequently asked question type. Okay, I was telling earlier कि
ITR is one of them. It's like simple topic. It will take your maybe like maximum max to max 1 hour just to read ITR. That's very simple. I am telling you. लिंक का आई बटन में शो रहा होगा. अगर आपको नहीं भी समझ में आता है कि मैं क्यों बोल रही हूँ मैक्स टू मैक्स 1 hour, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक दैट आउट. मैक्स टू मैक्स 1 hour लेगा जिसमें आपका एक ऐसा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जिसपे से श्योर हो क्वेश्चन बनता ही है. कई बार मैचिंग में आता है, कई बार जैसे ऐसे आता है डायरेक्ट. हमारी शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें मैचिंग में दे दिए थे. मैचिंग में दे देते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कभी स्लैब्स पूछ लेते हैं कि कौन सी इनकम ऐसी इनकम है तो कौन सा फॉर्म नंबर. तो देर आर द थिंग्स. ओके, तो यू विल लाइक फॉर श्योर यू विल डू इट. ओके, करना ही चाहिए आपको. यू शुड डू इट. ओके, सो हाँ, सो आई एम टेलिंग कि सुगम होता है एक, और एक फॉर्म होता है सहज. वी हैव ओनली लाइक 2 कि जिनको हम दूसरे नाम से जानते हैं, वरना वी हैव 7 forms. ITR 1 2 3 4 5 6 7. We have 7 forms for ITR filling, but we have only 2 names, Sugam and Sahaj. तो सुगम के लिए पूछा है. तो those who don't know about Sugam, so Sugam is related to the ITR form number 4. तो सुगम और ITR फॉर्म नंबर 4 इज इक्वल. और ITR 1 को हम बोलते हैं सहज. ठीक है, ITR 1 को हम क्या बोल सकते हैं, सहज. तो दीज ओनली 2 आर देयर कि जिनको हम सुगम और सहज से बनाते हैं. मोस्टली आस्ट क्वेश्चन है, इजीली समझ में आ जाता है. तो यही है. वैसे 7 फॉर्म्स होते हैं. आई एम अगेन टेलिंग यू 7 फॉर्म्स होते हैं. अलग अलग इनकम से डिफर करते हैं. अलग अलग इनकम के लिए अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. ओके, ठीक है. तो चलो, सुगम हो गया. इसका भी आंसर हमें पता चल गया है दैट सुगम इज रिलेटेड टू द ITR नंबर 4. सो this is the slide which I have done, like which I have completed in my own like previous income tax series. So you can check, just hold it, pause this video and just look at it and give it like 2 or 3 minutes. You will like understand, and then भी अगर नहीं समझ में आता है तो यू कैन लाइक आई ऑलवेज से कि प्लीज़ डू लेट मी नो. समझ में आ रहा है तो भी, नहीं समझ में आ रहा है तो भी. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ फॉर्म्स. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग जो मैंने कल भी बोली थी, एंड वाइल आई वॉज री रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, सो थो आई हैव टू से दिस. देयर इज अ सरप्राइज वीडियो. आई वॉज लाइक कुछ कर रही थी मैं, एंड देन आई जस्ट रियलाइज्ड कि ओके, व्हेन आई एम फेसिंग द सेम प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, तो मे भी किसी और को प्रॉब्लम हो सकती है. जस्ट टू रिमेंबर दीज टॉपिक्स. तो देयर इज अ सरप्राइज वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू. इट इज़ लाइक रिलेटेड टू, आई एम नॉट गोना टेल यू कि किस टॉपिक से रिलेटेड है क्या है. जस्ट वेट फॉर दिस, फॉर दैट वीडियो. विल कंटिन्यू दिस सीरीज, लाइक हम करेंगे ही सही से. तो वी आर वेटिंग फॉर पार्ट 6 7 8. वी आर डूइंग दैट थिंग. But still, I am telling you, you will like surely like that video. So just wait for this video. Thank you so much. Again, I am saying please do like, share and subscribe to my channel, and please share with your friends. You can follow me on like Telegram, or you can also follow us on the Instagram. Here is our ID, Arora Classes 05. You can also follow us on Instagram. We are providing good contents. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. आई होप आप सब अच्छे से करना. चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.